So when you talk about portfolio approach, so generally what kind of portfolio do you look at? 20 stocks portfolio, 50 stocks? Is there a count in your mind? On a global basis, I have a lot of stocks Okay. because I am a foreign investor, so my capital is all over the world. Okay. India is still a very small part of my capital. Okay. So, and अब तो और भी कम कर दिया मैंने because of my Yeah, view being whatever right. it is. But whatever I own, I like. Most of the stocks I like, but I sold a lot of stock also. Uh, on a global basis, I might own 80, 90 stocks. Okay. But that I think diversifies a lot of things for you. It's my belief that first of all, you should never have concentrated portfolio because that is going to. I mean, वो एक वन वे टिकट टू बैंक्रप्सी है. Correct. कॉन्सेंट्रेट होने दो मार्केट के थ्रू. मैंने आपने अगर 30-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया 2-2, 4-4% डाल के, अब उसमें से 10% विल बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. दैट विल देन बिकम लाइक 25%. 2-4-5 स्टॉक 25-30-40% हो जाएंगे. लेट द प्राइस एक्शन मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड रादर देन स्टार्टिंग आउट बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड. Right. जो बढ़ जाएगा वो रह जाएगा. एंड एलिमिनेट द लूजर्स. Correct. उनके पैसे आप धीरे धीरे करके रोटेट करो इनटू योर विनर्स. सो कॉन्सेंट्रेशन इज एन आउटकम. इट कैन नॉट बी एन इनपुट. करेक्ट. वेरी वैलिड पॉइंट. एंड इंडिया, मतलब इंडियंस जब सोचते हैं कि हमको बाहर इन्वेस्ट करना है, सो वन कंट्री दैट कम्स टू देयर माइंड इज यूएस. उसके अलावा यूरोपियन मार्केट, चाइनीज मार्केट्स, ये सब हमारे माइंड में नहीं आते. सो व्हेन यू थिंक अबाउट ग्लोबल इन्वेस्टिंग, वेयर आर यू लुकिंग एट? I look at everything. So right now, in fact, for me, US is almost no exposure. So there is no exposure in US, there is little in India. So where Yes. is exposure? Lot. So first of all, fixed income is now the biggest part of my portfolio Okay. than ever in my life. Okay. Because I think there's a lot of uncertainty and I prefer the safety of fixed income. Okay. I've had gold. I don't have it right now. I made a lot of money, but Exited. Exit हो गया. ठीक है, देखा जाएगा. Copper I have. So commodities, especially the industrial commodities I have, like copper. Okay. Silver I have. Platinum I have. And then, of course, I have many other markets. So China is today 30% of my Okay. holdings globally. Latin America is about 30-35%. Some of the European markets. European में बहुत हैं. Germany is my largest. In fact, my single largest country holding is Germany, Spain, Italy, Poland, Greece. And how do you invest, sir? Just out of curiosity. So you can invest everything through ETFs are there Okay. in every market. So you take a fund in ETF or a mutual fund sort of product. ETF is the best. Okay. I don't have to do stocks in these countries unless I find something compelling. But again, 25 years ago or 20 years when I first started doing global, which was 99, is when we started doing global investing, when we diversified globally. That time we would do a lot of stocks. That's how I found Amazon. That's how I found Apple. Okay. But now I largely do top down. Okay. Because when you do bottom up globally, it takes a lot of time. Plus, I think the information availability or the familiarity to read the information there, it's a little tricky also. नहीं कोई tricky नहीं. We've done this for 25-30 years. वो कोई problem नहीं. That's easy. Okay, so I mean we have had 50-member analyst teams doing all these companies for decades. So वो कोई issue नहीं है. But it takes time. When the more micro you go, your chance to make a lot of money is there, of course. But then that much effort is required. Correct. I'm not prepared to put in that much effort today. I was prepared to put in when I was in my 30s and 40s. जब डेबिट बैलेंस बनाया, जब उस वक्त डेबिट कर रहे थे ना. अब मुझे नहीं करना है यार. थोड़े पैसे कम बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जो है उसको खर्च ही कर लो. एंड आई थिंक बेस कैपिटल का भी फर्क पड़ जाता है. उस समय बेस कैपिटल कम होता है तो विलिंग टू टेक इन मोर रिस्क टू जनरेट दैट एक्स्ट्रा रिटर्न. इट्स नॉट रिस्क. इट्स नॉट द रिस्क तो है ही नहीं. इट्स ओनली अबाउट अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर प्रिपेयर्ड टू पुट फॉर दैट एक्सेस रिटर्न. टुडे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू पुट दैट मच एफर्ट फॉर दैट एक्सेस रिटर्न. इट्स वेरी सिंपल. I mean, this year my global portfolio till I think July का मैंने जुलाई तक मैंने देखा था is up about 19%. Oh, okay, 18 or 19%. Dollar terms. Dollar terms. Okay. Okay. अब मुझे मालूम है कि अगर मैं और थोड़ा फोकस्ड होता और थोड़ा मैं करता तो 25 तक चले तो मैं 25 कर लेता. मुझे अच्छी तरह से मालूम. करेक्ट. मे भी हो सकता 30 भी कर लेता. नहीं किया. 20 से खुश रहा. नहीं करना है यार. जितने छोड़ो ना यार. क्या है? अरे भाई बताओ 15 भी बन जाता है, क्या बुरा है बॉस? और जहाँ इंडियन मार्केट्स नेगेटिव दिया है, इफ आई मेकिंग यूएस मार्केट नहीं दिया है. हाँ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया. तो इफ आई मेकिंग 15%, 17%, अभी थोड़ा मेहनत करके मेरे को नहीं करना है. इट्स योर चॉइस. सर बहुत सारी कंपनीज में आपकी होल्डिंग दिखती है पब्लिकली. सो आई वुड लाइक टू आस्क विदाउट साइटिंग एनी नेम,
what is the thought process? For example, you bought a Rama Steel, you bought a Brightcom. What is the thought process? How do you select this small cap, mid cap companies? It's very hard. Let's be clear about it. And again, I always say small cap में पैसे बनते हैं लेकिन रिस्क भी होता है. And by that token, large cap में भी होते हैं. अब लोगों ने large caps में भी पैसे खोए हैं, पैसे बनाए हैं. And it's the same thing. Small caps में और थोड़ा ज्यादा होता है कि promoters untested होते हैं. आपको उतनी चीजें पता नहीं चलती हैं. बट अगेन आई से कि आप मान के चलो ना, आपने 100 25 50 डिसीजंस लेंगे, उसमें 10 20 50 आपके रॉन्ग हो जाएंगे. इट डजंट मैटर. डोंट गेट इमोशनल अबाउट इट. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. बाय एंड लार्ज इट विल वर्क आउट ओके इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डिसीजंस व्हिच आर अगेन लॉजिकल एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग द डिसीजन. Correct. उस टाइम ठीक था कि नहीं था. देन सेकंड पॉइंट इज with subsequent events your view should not remain at the original point. Correct. You should be able to change. So we will find situations which you don't like. We'll find situations that do better. As a BLS International, that I never thought it would do 4-5 times my price, but it became that in 2.5 years. Correct. Some will fall 40%. It's okay. But decision making के जो आपके मापदंड हैं, it has to be obviously undervalued. मैनेजमेंट क्वालिटी लोग बोलते हैं बहुत हाई होना चाहिए, बट पता नहीं चलता है आपको, वो बाद में पता चलता है जाके. यू नो दैट एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्मॉल कैप जर्नी सभी ठीक लगेंगे आपको, और सभी में एंथुसियाज्म होगा. सभी में एंथुसियाज्म, जुनून, गवर्नेंस सब बातें होंगी. अब ये 2-4 साल के बाद मालूम चलेगा ना. अब आईटी का जब बूम हुआ था स्टार्ट 96 से, तो उस वक्त बेसिकली सत्यम, इन्फोसिस, टीसीएस में लिस्टेड नहीं था, विप्रो और एचसीएल भी उस टाइम लिस्टेड नहीं था, बट यही 2-4 कंपनियां, छोटी छोटी बहुत कंपनियां थी. अब उस वक्त सारी कंपनियों की स्टोरी बहुत अच्छी थी एंड सबने बहुत पैसे बनाए भी इन्वेस्टर्स के लिए. जब क्रैश आया और उसके बाद जब ये हुआ, तो बारिंग द टॉप 3 बाकी सारे खत्म हो गए. इवन सत्यम खत्म हो गया, और छोटे छोटे तो सारे के सारे साफ हैदराबाद के हजारों कंपनियां थी. अब पॉइंट इज कि उस दिन मैं एक एक कंपनी से मिल रहा हूं और मैं डिसीजन लूंगा, मैं रॉन्ग हो जाऊंगा. तो हमने उसको एक बास्केट अप्रोच ले लिया कि सेक्टर ठीक लगता है. अब इस सेक्टर में क्या सही है क्या गलत है ये तो भगवान भी नहीं जानता. ये टाइम बताएगा. तो आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच ले लो ना. सेक्टर का बेट आपका सही पड़ा, उसमें से 2-4 गलत भी हो गए, 4-5 ठीक हो गए, इनफ है, गुड इनफ है. सो दैट्स द वे आई लुक एट इट, दैट आई एम प्रिपेयर्ड टू बी रॉन्ग. ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस गेम.